Good morning, students. Now, last time from your Gujarat board textbook, we had finished the unit 1, right? We had finished all the colors and all the activities that were given to you. We had solved those activities, and I had also sent you the workbook question answers and exercises up to unit activity 4, right? Now, today I'll be sending from activity 4 onwards till the uh, additional activities, all the exercise. Additional activities we won't be doing because they are extra activities, they are not related to the textbook, right? So, and they are opinion based questions, you have to write and describe on your own, so we are not doing it, we are cancelling those exercises. However, up to here it is related to the textbook, the lesson which you have learned, the poem which you have learned, right? So up to that, I have solved it in the textbook, in the workbook, and I'm sending you the copy of that, a photograph of that. Now let us start with unit 2, amazing animals. Activity 1. This unit is about some of the amazing animals that share our world, right? There are many animals around. There must be pet animals whom you also have them as pets in your house, whereas there are some animals who are around your neighborhood and everywhere you can see them, right? What animal shape do you see? What is the shape here? What words do you find in the shape? You have to find out the colors. You can clearly see the words written here: fly, blue, flowers, color, antenna, all these words are there. It is a butterfly, right? So write down here, it's a butterfly. And the colors that you can see, the words that you can see, there are many words which are written. So write down any 10 words that you can see here, right? Because यहाँ पे इतनी जगह है, so write any 10 words that you can see here. Okay, now let us read further. Activity 2. Do this one in homework, right? That you can do it. The words you can easily see. आपको इधर words दिख रहे हैं, उसमें से निकाल करके यहाँ पे copy down करने, कोई भी 10 words लिखो, right? Okay, now let us move further. Battle in the Jungle Part 1. Once upon a time, all the animals that walked on land मतलब जो land पे रहते थे वो, and all the birds and insects that flew in the sky, जो भी birds fly करते थे और insects थे, they began to quarrel about who was the smartest and strongest. Underline smartest and strongest. Smart and strong का क्या है ये? Degree of comparison है. It is the superlative degree, right? ओके तो सुपरलेटिव डिग्री क्या करता है? आपको बताता है कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे स्मार्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, राइट? इसीलिए वो सेंटेंस में ऐसे यूज़ होता है. ओके, दे बिगेन टू फाइट विथ ईच अदर. फर्दर, एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली, देन स्लोली दे बिकेम एंग्रियर एंड लाउडर. द टाइगर्स ग्राउल्ड मतलब टाइगर्स जो आवाज़ करते हैं ना, एक डरावनी सी आवाज़ करते, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउलिंग, राइट? सो द टाइगर्स ग्राउल्ड एंड द वुल्व्स हाउल्ड. वुल्व्स जो होते हैं वो एक अलग टाइप का ये बोलते हैं लाफिंग साउंड जैसा करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हाउलिंग. सो इट इज़ हाउल्ड. द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड कैकल्स मतलब बर्ड्स का एक अलग ही साउंड होता है, वो कैकलिंग साउंड उनकी बीक्स में से वो करते हैं, राइट? तो वो उनके हिसाब से आवाज़ करने लगे. द इंसेक्ट्स बज्ड. इंसेक्ट्स कैसा बजिंग साउंड करते हैं, राइट? बटरफ्लाइज, हनी बीज, दे ऑल मेक बजिंग साउंड. तो वो साउंड वो करने लगे एज लाउडली एज दे कुड. ऐसे सब लोग अपना अपना साउंड करके लड़ने लग गए अपने अपनी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से. At last, an old parrot said, "Stop shouting. Let's not waste our time and energy in talk. Let's fight." क्या बोला उन्होंने? टॉक और डिस्कस करके चिल्लाने से हमारी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय लेट्स फाइट, डायरेक्टली हम लोग आमने सामने आके फाइट करते हैं. द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया. क्या हुआ? हंसने लगे सारे एनिमल्स. कैसा कभी हो सकता है? छोटी सी हनी बी और वो सब फाइटिंग करेंगे, बड़े बड़े बर्ड्स और ये एनिमल्स. What said the lion? Can you fight us? Don't be foolish. Lion ने क्या बोला? तुम हमको fight कर सकते हो, don't be foolish, because he is the king of the jungle, right? So he is very mighty and strong, but these animals cannot combat him. उससे लड़ सकते हैं? नहीं. Don't be foolish. I can bite harder than any one of you. उसने क्या बोला? मैं तुम लोगों से ज़्यादा हार्ड बाइट कर सकता हूँ, राइट?
द एलिफेंट सेड आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस. एलिफेंट ने क्या बोला, मैं पूरा ट्री उठा के तुम्हारे ऊपर फेंक के सबको एक साथ में फाइट कर सकता हूँ सबके साथ में. सो आई एम माइटी, ही वॉन्ट्स टू से, एलिफेंट वॉन्ट्स टू से दैट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वी विल ईजिली डिफीट यू, ऐसा बोला उसने. डिफीट मतलब हराना, राइट. वी विल ईजिली डिफीट यू. विल यू, सेड द पैरट. क्या पूछ रहा है वो, ऐसा, विल यू. वी विल सी अबाउट दैट. गेट रेडी टू फाइट अस. क्या बोला उसने, पैरट ने, गेट रेडी टू फाइट अस. ओके, चलो तुमको ऐसा लगता है तो चलो हम लोग फाइट करते हैं, गेट रेडी. द लायन बिकेम द कमांडर ऑफ द एनिमल्स. कमांडर को अंडरलाइन करो, कमांडर मतलब हेड बन गया वो. द पैरट बिकेम द कमांडर ऑफ बर्ड्स, राइट. पैरट ने बर्ड्स को लीड करना शुरू किया. द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर एंड गेव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस. ड्रिल मतलब एक मॉक, एक प्रैक्टिस होता है कि हम लोग कैसे लड़ेंगे. जैसे हम लोग सेना को, सोल्जर्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, कि हम लोग कैसे फाइट करेंगे सामने वाले दुश्मन की सेना से, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मॉक ड्रिल. ड्रिल मतलब वो सोल्जर्स में भी होती है, जैसे आर्मी में भी एक ड्रिल होती है, राइट. So in that drill it is a training, it is a kind of training that how you will fight the soldiers in the opponent's army. For practice, practice को underline करो. They marched, march मतलब जोर जोर से चलने लगे. वो सोल्जर जब चलते हैं तो दोनों फुट 1 2 1 2 करके चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्चिंग. For long hours. He gave them a lot of good food too. क्या दिया उसने, अच्छा अच्छा फूड भी दिया खाने के लिए उसकी आर्मी को. The poor birds did not have good food and they did not practice. Birds के पास इतना अच्छा फूड नहीं था और इतना प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने. Instead, instead को अंडरलाइन करो. Instead मतलब on the contrary, उसके अलावा they had a meeting with their friends the insects. उन्होंने क्या किया, उनके फ्रेंड्स जो थे, इंसेक्ट्स उनके फ्रेंड्स है बर्ड्स के, तो उनके साथ वो लोग ने मीटिंग किया. उन लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया. नाउ न्यू वर्ड्स यहाँ पे क्या क्या है. क्वारल इज एंग्री डिसअग्रीमेंट. डिसअग्रीमेंट मतलब एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी होना, लड़ाई करना. मेन, लॉन्ग हेयर फ्रॉम द नेक्स ऑफ सर्टन एनिमल्स. मेन यानी नाउ घोड़ा होता है, उसकी नेक पे ऐसे ऐसे बाल होते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड मेन. ऐसे काफ़ी सारे दूसरे एनिमल्स के इसमें भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन. ओके, देन बैटल इज फाइट. स्टिंग, टू हर्ट विथ अ सडन शार्प पेन. स्टिंग मतलब चुभना, राइट. हनी बीज जो होती है वो स्टिंग करती है, सडनली काटती है, तो वो आपको बहुत उससे दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिंगिंग. रोर, टू अटर अ लाउड डीप रम्बलिंग साउंड. जो जोर से चिल्लाना, एक हाउलिंग साउंड होता है. रोरिंग कौन करते हैं, ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स एंड लायंस, दे रोर. नाउ स्पाई, टू वॉच क्लोजली एंड सीक्रेटली. स्पाई मतलब किसी का पीछा करना और चुपचाप देखना वो क्या कर रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड स्पाइंग. ओके, now activity 3. 3 characters have spoken in the story so far. Who are they? कौन से कैरेक्टर्स ने बात करी है. एक तो लायन है, राइट, उसके बाद एक पैरट है, और कौन है, एलिफेंट. एलिफेंट ने अपना दिखा दिया दैट आई एम पावरफुल. ओके, सो ऑल दीज 3 आर देयर. लुक केयरफुली एट द स्टोरी. हाउ डू यू नो हु इज स्पीकिंग? How does the punctuation in the story show you that the characters are speaking? Notice the copy, one of the quotations. Notice and copy one of the quotations which with its punctuation from one of the characters. आपको कैसे पता चलता है कि ये कौन बोल रहा है, वो बता रहा है वो, या राइट, वो पूछ रहा है. कैसे पता चला, अभी यहाँ पे ऐसा दिया है, द एलिफेंट सेड, उसके बाद कॉमा, और ये 2 कॉमा ऐसे उल्टे इन्वर्टेड कॉमास. मतलब एलिफेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, के ये. अगर आप हिंदी में बोलते हो ना कि एलिफेंट बोल रहा है कि एलिफेंट बोला, राइट, फिर उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होता है. तो जब ये कोटेशन मार्क्स आप रखते हो तब आपको पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच हो रहा है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच हो रहा है. तो डायरेक्ट एलिफेंट ये चीज़ बोल रहा है, राइट. तो कोटेशन मार्क्स बहुत ज़रूरी है. ये ग्रामर, ये पंक्चुएशन में आता है. पंक्चुएशन यानी जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होगा तो आप फुल स्टॉप रखते हो, जहाँ पे आप बात करते करते पॉज लेते हो वहाँ आप कॉमा रखते हो, राइट. उसके बाद जब आप क्वेश्चन पूछते हो यू पुट अ क्वेश्चन मार्क. जब आप कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने पढ़ा है, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, राइट. सो ऑल दीज आर व्हाट, पंक्चुएशन मार्क्स. व्हाट आर दे आर द पंक्चुएशन मार्क्स. नाउ जब आप डायरेक्ट स्पीच, किसी का बोला हुआ आप डायरेक्ट लिख रहे हो, तो आप कोटेशन मार्क्स को यूज़ करते हो. कोटेशन मार्क्स यानी कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमास, राइट. सो
दे आर द पंक्चुएशन मार्क्स. अभी लायन बोल रहा है वॉट लायन एक्सप्रेस कर रहा है कि क्या बकवास कर रहा है, राइट. तो उसने एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे दिया है क्योंकि वो सरप्राइज्ड है, वो एक रिएक्शन दे रहा है. ही इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज. व्हाट, राइट. दैट इज वाई इन्वर्टेड कॉमर्स तो है पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है. फिर आगे वो बोल रहा है सेड द लायन अगेन कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा कैन यू फाइट अस, डोंट बी फुलिश, आई कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ यू. अब आपको पता चला लायन क्या बोल रहा है कि उसको वो ज़्यादा सुपीरियर है. ही कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ द अदर एनिमल्स, राइट. सो दिस इज़ द वे दैट यू शो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब कोई डायरेक्टली बोल रहा है तो उसका बोला हुआ सेंटेंस आप ऐसे कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमास में डालते हो, ये दिखाने के लिए कि वो बोल रहा है अभी प्रेजेंट में, राइट. सो दैट इज़ कॉल्ड कोटेशन मार्क्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? कोटेशन मार्क्स. ओके. तो यहाँ पे हमको ऐसा पूछा है कि आपको कैसे पता चला. नोटिस एंड कॉपी वन ऑफ द कोटेशंस विद दिस पंक्चुएशन फ्रॉम वन ऑफ द कैरेक्टर्स. कोई भी एक लिखो, एलिफेंट लिखो या पैरट लिखो या लायन लिखो, किसी का भी एक डायलॉग लिखो. पूरा ये जैसे दिया है वैसा ही लिखना है. इफ़ यू आर राइटिंग लायन देन यू हैव टू राइट दिस एंटायर डायलॉग. लायन सेड व्हाट, सेड द लायन, ये पूरा लिख सकते हो. अगर एलिफेंट का लिखना है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा करना है, तो ही आपको पता चलेगा कि ये पूरा डायरेक्ट स्पीच है, राइट. okay, so this you will do it in homework. I am not doing it here, right. I have told you what you have to write. Further, the story says all the animals that walked on land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel. quarrel यानी लड़ने लगे, ठीक है. At first they spoke softly, then slowly they become angrier and louder. angrier भी एक ये है वर्ब है. वो ज़्यादा एंग्री हो गए और लाउड हो गए और चिल्लाने लगे पहले, राइट. लड़ाई करने लगे. यू नो दैट थ्री कैरेक्टर्स सेड what three characters said, but what did the other animals say? For example, the story says the tigers growled and the wolves howled, right. The birds gave loud cries and cackles. loud cries and cackles. The insects buzzed as loudly as they could. ये है ना, सबके साउंड्स दिए हैं. टाइगर्स क्या किया? ग्राउलिंग किया उन्होंने. वुल्व्स ने क्या किया? हाउलिंग किया. देन बर्ड्स ने क्या किया? क्राइज दिए और कैकल्स दिए. इंसेक्ट्स ने क्या किया? बजिंग करने लगे, राइट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ साउंड्स. ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक द टाइगर्स एंड वुल्व्स आर सेइंग विद देयर ग्राउलिंग एंड हाउलिंग? Work with a partner in a group or as the other characters. Use punctuation that you have noticed from the story to show who is speaking. अब टाइगर का आप डायलॉग लिख सकते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे लिखने हैं. टाइगर सेड दैट, और फिर आप उसका डायलॉग इधर एंड करोगे. आई एम मोर पावरफुल, ऐसा भी लिख सकते हो. आई एम मोर स्ट्रॉन्ग. I will eat away all of you, ऐसा बोल सकते हो. I will eat away all of you, away, right. You can write that. पैरट के बारे में लिख सकते हो, राइट. ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है. दिस इज ऑल्सो आई एम गिविंग इट इन होमवर्क बिकॉज दिस यू हैव टू राइट इट according to your opinion. If you worked as a pair or group, share your dialogue with your classmates. You cannot share your dialogues with the classmates because just now the school is not on. You are learning at home, so just write your own opinion here. Okay, now further, activity 4, battle in the jungle, part 2. At the meeting, the parrot called on their friend and the fly. What is a fly? The fly is an insect. parrot ने उसको बुलाया. insects और birds friends है. You become the spy for our army. spy मतलब उसका पीछा करो. and देखो, टेल अस द एनिमल्स प्लान. उधर जाकर के घुसो एनिमल्स के ग्रुप में और हमको उनका प्लान बताओ. येस, सेड द फ्लाई, आई विल बिकम द स्पाई फॉर अवर आर्मी. बिफोर द बैटल द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर. द टाइनी फ्लाई फ्लू इन एंड हिड नियर बाय. सारे एनिमल्स को लायन ने बुलाया लड़ाई करने से पहले. उसमें वो जो छोटी सी मक्खी थी वो घुस गई अंदर और वो सुन रही थी. आर यू ऑल रेडी? द लायन आस्क्ड. येस, वी आर रेडी. They all shouted, we are ready to go to the battlefield. battlefield मतलब लड़ाई का मैदान, जहाँ पे लड़ाई होने वाली है, right.
Underline that. I am making you underline all the words which you are supposed to write it as hard words in your notebook, right? So please mark them, and also write the word meanings which we have learned here, right? Write one time in your notebook, right? एंड ऑल द वर्ड्स विच आई हैव मेड यू अंडरलाइन, जो भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं इसके अंदर, वो भी आप हार्ड वर्ड्स में लिखोगे एज योर होमवर्क. ओके, फर्दर देन लिसन केयरफुली, सेड द लायन. द लायन विस्पर्ड. विस्पर्ड मतलब उसने चुप से कानाफूसी किया उनके कान में. आई हैव अ प्लान. कैप्टन फॉक्स, यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल. यू विल बी माई सिग्नल. क्या बोला? कैप्टन फॉक्स को कैप्टन बना दिया और उसको बोला मेरा सिग्नल बनोगे तुम, क्योंकि तुम्हारी पूंछ बहुत लंबी है. ऑन द बैटल फील्ड आई शैल विस्पर इन योर ईयर व्हेन इट इज़ टाइम टू फाइट. यू विल पुट अप योर लॉन्ग टेल टू सिग्नल ऑल द एनिमल्स टू अटैक द बर्ड्स. इज दैट क्लियर? क्या बोला उसने फॉक्स को कि मैं तुमको सिग्नल की तरह यूज़ करूँगा, और जैसे ही मैं तुम्हारे कान में विस्पर करूँगा कि लड़ाई शुरू करो, वैसे ही तुम अपने लॉन्ग टेल से सिग्नल करोगे सारे एनिमल्स को टू अटैक द बर्ड्स. अटैक यानी उन पे आक्रमण करना है, उनको ये करना है, मारना शुरू करना है. वेरी क्लियर सर, सेड द फॉक्स. वेरी वेल, सेड ऑल द एनिमल्स इन वन वॉइस. द फ्लाई हरिड. हरिड मतलब फटाफट वो उड़ के वो गई. टू टेल द पैरट द लायन सीक्रेट प्लान. द टाइम फॉर द बैटल केम. बोथ sides met on the battlefield. Soon the lion whispered to the fox, it is time, put up your tail. The fox put up his tail to signal the animals to attack, right? Fox ने उसका tail नीचे रखा animals को signal देने के लिए. But the parrot was ready. He quickly and quietly said to the bee, hurry at once and sting the fox's tail. क्या बोला पैरट ने बी को कि फटाफट जाओ और उसके फॉक्स के टेल को जाकर के काटो, स्टिंग करो. उससे क्या होगा कि वो उछलेगा, उसको वहाँ पे खुजली आएगी, एंड दैट टेल ही विल टेक अवे, राइट? क्विकली एंड क्वाइटली को अंडरलाइन करो, एंड स्टिंग को अंडरलाइन करो. स्टिंग मतलब काटना, वो हमने किया है पहले. द बी स्टंग द फॉक्स. नाउ स्टिंग का स्टंग हो गया. स्टंग इज योर पास्ट टेंस वर्ब हुआ, राइट? यहाँ पे स्टिंग यूज़ किया था, यहाँ पे स्टंग यूज़ किया है, वो उसका पास्ट टेंस हुआ. ही स्टंग हिम वंस. ही स्टंग हिम ट्वाइस. ही स्टंग हिम 3 times. 3 बार उसने उसको जाकर के काट लिया बी ने. द फॉक्स फॉरगॉट ऑल अबाउट द सिग्नल. फॉक्स क्या हुआ, सिग्नल को कम्प्लीटली भूल ही गया. और ही जम्प्ड. ही शाउटेड. वो जंप करने लगा, शाउट करने लगा. ही रैन इन सर्कल्स आफ्टर ही इज इंजर्ड टेल. इंजर्ड मतलब उसकी जख्मी टेल को लेकर के जोर जोर से गोल 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 घूमने लगा. एंड फाइनली टक्ड हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स. और पूंछ लेग्स के बीच में उसने दबा दिया. टक्ड मतलब दबाना. एंड रैन अवे, और भाग गया वहाँ से. द अदर एनिमल्स वेर कन्फ्यूज्ड एंड रैन आफ्टर हिम. दे रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड. दे लॉस्ट द बैटल. ऐसे करके उसको जाते हुए देख करके बाकी सारे एनिमल्स भाग गए. द बर्ड्स फ्लटर्ड देयर विंग्स इन जॉय. फ्लटर्ड मतलब ऐसे ऐसे फफड़ाना. उनके विंग्स को वो फ्लटर करने लगे इन जॉय, खुश होकर के. दे हैड वन विदाउट फाइटिंग एट ऑल. बर्ड्स ने क्या किया, वो लड़ाई जीत गए विदाउट एनी फाइटिंग किए बिना ही वो जीत गए, राइट? नाउ we stop here today. I have given you the hard words and these 2 activities to do in homework. ये आपको करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है. बट हार्ड वर्ड्स जो मैंने आपको अंडरलाइन कराए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. ये वर्ड मीनिंग्स आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, राइट? सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे फ्रॉम एक्टिविटी 5. वी विल डू नेक्स्ट टाइम. वी स्टॉप हियर टुडे.